Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter, chapter number 8. You can see algebraic expression and identities. So let's get started. So before diving deep into the concept of algebraic expression and identities, student must have an understanding of some fundamental concepts, mathematical concepts. The background knowledge will help in understanding complex ideas related to algebraic expression and their operation. Here are key pre-knowledge concepts. So here you can see here are key pre-knowledge concepts. So addition, subtraction, multiplication and division of numbers should be well understood as these operations form the foundation of algebraic expressions. For example, 7 plus 3 is equals to 10, 10 minus 4 is equal to 6, 6 into 2 is equal to 12, 12 divided by 3 is equal to 4. Student must apply these operations while working with algebraic terms. Now, variables are symbols, usually letters like x, y, z that represent unknown quantities. So यहाँ पे आप देख सकते हैं x, y, z क्या है, unknown quantities है. Constant are fixed numerical values. For example, 2 minus 5 10 क्या है, constant values है. In the expression 5x plus 3x variable है और 3 क्या है, constant है. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ये 5 क्या है, ये तो constant है, but this x is a variable. Okay, now let's see here exploring essential ideas. So let's understand this concept. Understanding the difference between variables and constant is crucial for constructing simplifying algebraic expressions. So, an algebraic expression consists of terms which are a part of an expression separated by a plus or minus sign. Here you can see algebraic expression terms consist करते हैं जो कि प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किए जाते हैं. अ कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर. कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? न्यूमेरिकल फैक्टर होता है ऑफ अ टर्म containing a variable. For example, in this given expression you can see that 4x टर्म है, 3y टर्म है, -7 टर्म है. तो वहीं पर अगर पूछा जाए x का कोफिशिएंट क्या है 4 और y का कोफिशिएंट क्या है 3. सो इस तरीके से आपको वेरिएबल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ होती है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल. नाउ लेट्स सी लाइक टर्म्स आर टर्म्स विद द सेम वेरिएबल रेज्ड टू द सेम पावर. दिस कैन बी they can be added or subtracted. For example, 5x and 3x, they both are having the same power, same variable, my bad, same variable, so that will be equals to 8x. We can perform the operations on it. For both terms are like terms and can be added to give 8x. Solving simple equation is a basic requirement before learning about algebraic identities. We will learn in this chapter. An equation is a statement that shows the equality between two expressions. For example, to solve this one, you can see that there are two sides LHS and RHS and they both are equal. So based on that equality हम क्या करेंगे, x की value find out करेंगे. Clear हो रहा है? We will find out the value of this variable in the upcoming session. We will do some examples. So what will we do? Subtract 5 from the both side and then divided by 3 and then you will get x is equal to 3. आपने ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी सॉल्व कर रखे हैं. Now the distributive property states that multiplying a sum by a number is the same as multiplying each term in the sum by that number. For example, यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसे ओपन किया जाए a की मल्टीप्लाई b से होगी and प्लस का साइन a की मल्टीप्लाई c से होगी. So that is the distributive property. That means 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना होगा 6x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो कितना आएगा 12. Okay, by using distributive property. Now let's move forward and see the next concept. This is exponents and powers. So exponents represent repeated multiplication of a number by itself. So for example, x to the power 2 का क्या मतलब है बच्चों? इसकी पावर कितनी है 2. So that means वो सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर 3 की पावर 3 है दैट मीन्स 3 की जो बेस है उसके पावर जितनी है उस नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है. अगर 4 होता तो 4 बार मल्टीप्लाई होती. अब देखिए x की पावर 3 यानी x 3 बार रिपीट हो रहा है. 2 की पावर 2 एज यू ऑलरेडी नो दैट विल बी 4. नाउ दिस concept is important. Okay, remember that this concept is very important. There is a dedicated chapter on exponent and power जो आप पढ़ोगे when dealing with the powers of a variable in algebraic expressions. So let's see here.
So addition and subtraction of algebraic expression. In earlier classes, we have already learned what algebraic expressions are. Some examples of algebraic expression include x plus 4, you can see that 3y minus 6, 5a square and 6xy minus 8 are some examples of algebraic expression. You can see these all are, some terms contain variable and some not. Okay, now let's see here. We have also learned how to add and subtract algebraic expression. Let us revise the process with different values. For example, the first expression and this is the second expression, and what you have to do, you have to add it. So we arrange the terms of both expression in a way that like terms with the same powers of p are aligned. For example, you can see 6p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 7 आपको पहला टर्म दिया, पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है. दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 5p माइनस 8. सो दे बोथ आर लाइक टर्म्स, सो वी विल कीप इट टुगेदर. ओके, नाउ इन्हें सॉल्व करने पे कितना आएगा 2p. अब कोई लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, माइनस 8 प्लस 7 कितना देगा माइनस 1. सो फाइनल आंसर विल बी 9p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1. क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट ऐसे ही सेम अनदर एग्जाम्पल में देखिए ऐड करना है. दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन एंड थर्ड एक्सप्रेशन. जस्ट एडेड, ये तीन एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं. अब जब आप इन्हें ऐड करोगे सो ध्यान से देखिए, ये xy वाला है 4xy एंड और कोई xy है माइनस 3xy. यू कैन सी दैट हियर. नाउ द नेक्स्ट वन 3yz, yz इसका लाइक टर्म 5yz, सो यू कैन सी दैट हियर. नेक्स्ट लाइक टर्म 2zx and 6zx and 2zx. So यहाँ पे देखिए these are like terms. After that you can see that here 3x and plus 7y, they both are unlike term. So keep it together. Why? Because इनके साथ कोई और pairing में like term नहीं है. Now जब हम इन्हें solve करेंगे we will get xy. 4xy minus 3xy, you will get xy. 3 plus 5, you will get 8yz. minus 2 plus 6 plus 2 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. प्लस 6zx बचेगा. माइनस 2zx माइनस और प्लस का 2zx कैंसिल हो गया, प्लस का 6zx बचेगा. माइनस 3x प्लस 7y इज योर फाइनल आंसर. So the sum of these given three expression is this. Okay, now let's move forward and let's see this one. So you can see this, we have to subtract this time. What we have to do, we have to subtract. You can see that here आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ दिया है एंड सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ दिया है. बोला क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस, यानी इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो ये आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन. नाउ ओपन द ब्रैकेट ऑफ माइनस. सो रिमेंबर इट, while subtracting remember to change the sign of the terms in the second expression. So ये जो second expression है इनके साइन चेंज हो जाएंगे. ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस. Clear? Now you can see that here 7a square minus 4a square like term. Next one देखिए minus 6ab, then minus 6ab के साथ कोई like term नहीं है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट कौन सा है, प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर. अगेन द नेक्स्ट वन प्लस 4a. okay, let's choose the another one, plus 4a and again minus 5a. you can see these both are like terms. The next one plus 2 and minus b, इनके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है. सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने पे मिलेगा प्लस का 3a स्क्वायर माइनस 6ab एज इट इज, ये हो जाएगा 12b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस a एंड ये एज इट इज. क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आया कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज. इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टर्म्स and their coefficients for each of the following. So how can you do this? मैं आपको ये वाला समझाती हूँ. यहाँ पे कितने टर्म्स है, 8xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y एंड 6, ये तीन टर्म्स है. अब आप इनके कोफिशिएंट्स निकालेंगे. एज इट इज आपको यहाँ पे भी देखिए कितने टर्म्स आप बता सकते हैं, 1 टर्म एंड 2 टर्म. अब कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट हमने पढ़ा है राइट, हमने एग्जाम्पल में भी देखा था. नेक्स्ट देखिए अगला, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. जब किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म होता है दैट इज मोनोमियल, 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म होते हैं ट्राइनोमियल. सो यहाँ पे मुझे बताइए कितने टर्म्स हैं, ओनली 1. सो दिस इज मोनोमियल.
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कितने टर्म है 1 and 2, सो ये क्या हुआ बाइनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म है 2, ये भी कितना हुआ बाइनोमियल। यू कैन सी दैट हियर यहाँ 3 टर्म है तो ये हुआ ट्राइनोमियल। ओके, मैंने मोनोमियल को m से रिप्रेजेंट किया है, बाइनोमियल को b से एंड ट्राइनोमियल को t से। आप पूरा लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड द फॉलोइंग, सो आप इन्हें कर सकते हैं, इतने एग्जांपल्स हमने देखे हैं, सो इससे सॉल्व हो जाएगा। ये आप इसे इन तीनों को ऐड कीजिएगा। सो देखिए x, मैं अगर इसे ऐड करूं, कॉमा हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन एंड दिस इज ऑल्सो प्लस। नाउ यू कैन सी दैट हियर एक्स वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई जी प्लस वाई जी कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी एक्स प्लस जी एक्स, तो आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट भी आप आसानी से कर लेंगे। कैसे, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। सो साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 7y माइनस 12। सेकेंड एक्सप्रेशन ये है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 7। नाउ अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x के साथ माइनस 3x को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, माइनस 2x। ऐसे ही बच्चों जैसे आप अनदर दूसरा लाइक टर्म लोगे प्लस 7y माइनस 6y, तो बताइए कितना सॉल्व होके मिलेगा, आपका आंसर आएगा प्लस का y, क्योंकि प्लस 7y माइनस 6y, देन माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5, योर फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। अब बच्चों इसको देखिए थोड़ा ट्रिकी है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू। सो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐड कीजिएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। क्या है बच्चों, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन of algebraic expression. So multiplying algebraic expression is a fundamental concept in algebra that helps in solving various mathematical problems such as calculating areas, volume and prices. So बच्चों अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, प्राइस कैलकुलेट करना है, इन दैट कॉन्सेप्ट इट इज वेरी हेल्पफुल कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। सो इन दिस कॉन्सेप्ट लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। So area of rectangle, so if you have to find the area of rectangle, let a rectangle with length L and breadth B, the area of this rectangle is given by the formula area is equal to L into B. So जब आपको ये फॉर्मूला दिया गया था तो तब भी यहाँ पे L एक वेरिएबल है अननोन क्वांटिटी, B भी एक वेरिएबल है अननोन क्वांटिटी। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, बाय यूजिंग algebraic expressions. So now suppose the length of the rectangle is increased by 7 unit. So basically length को हमने 7 unit से increase कर दिया, यानी L plus 7, and breadth is decreased by 4 units. That means breadth में 4 decrease हो जाएगा. The new area of the rectangle becomes L into B. L is L plus 7, B is B minus 4. Next देखिए बच्चों, here the new area involves multiplying two algebraic expression L plus 7 and B minus 4. Now the volume of a rectangular box is found by multiplying its length, breadth and height. If the length of a box is L, breadth is B and height is H, then कैसे find out करोगे volume, L into B into H. जो क्यूबॉइड बॉक्स का फाइंड आउट किया जाता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यूबॉइड तो है। So now suppose the length is decreased by increased by 3 unit, that will be L plus 3. Breadth is decreased by 2 unit, decrease हो रहा है, so B minus 2. और वहीं पर हाइट रिमेन्स अनचेंज्ड, सो L हो जाएगा L plus 3, B हो जाएगा B minus 2 और हाइट सेम है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर वी मल्टीप्लाई 3 एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। नाउ लेट्स से द प्राइस ऑफ बनानास पर डजन इज P. The number of dozens needed for a picnic is Z. Now the total cost for the banana is P into Z, क्योंकि कितना बनाना ले रहे हो और कितने डजन ले रहे हो, ठीक है, so that matters for the total cost. Now suppose the price of the banana per dozen decreases by 3, so that means P minus 3, और वहीं पर the number of dozens is needed reduced by Z, reduced by 5, my bad। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि जो प्राइस ऑफ बनाना है वो डिक्रीज हो गया 3 से, सो P माइनस 3, और वहीं पर जो नंबर ऑफ डजन्स नीडेड इज रिड्यूस्ड बाय 5, सो
जो डजन्स, जो अमाउंट ऑफ बनाना हमें चाहिए था, जितना हमें बनाना चाहिए था, दैट इज रिड्यूस्ड बाय 5, दैट इज z minus 5. So the new cost would be p minus 3 into z minus 5. Clear? Next देखिए बच्चों, this is an example of multiplying two algebraic expression representing price and quantity. I hope ये examples आपको clear हुए. Now let's see now let's see the concept systematic multiplication of two algebraic expression. So, to understand this process better, let's focus on multiplying two monomials, binomials, and polynomials. First, we will understand multiplication of two monomials. Okay, so a monomial is a single term. Monomial हमें पता है single term होता है 3x and 4y are some example of monomial. To multiply two monomials, we multiply their coefficients and their variables. So coefficient आपको पता है, variable भी आपको पता है. आपको 3x and 5y को मल्टीप्लाई करना है. सो कोफिशिएंट 3 और 5 है, कितना हो जाएगा 15. और वहीं पर बच्चों अगर वेरिएबल x एंड y है तो इसको कितना आएगा xy. सो फाइनल आंसर इज 15xy. नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स. सो मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू मल्टीप्लाई टू मोनोमियल्स. सो वही सेम मेथड है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक्सटेंशन यूज करना है जो हमने मोनोमियल में यूज किया था जब दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे. To multiply several monomials, we multiply their coefficients and numbers and then combine the variables by adding their exponents. Since you can see that here x की power a है, x की power b है, अगर दोनों की base same है, यानी this one is same, then you can add the power a plus b. Now steps to multiply 3 or more monomials: multiply the coefficients and multiply the variables by adding the exponents of like variables. Remember this. Now for example, you have to multiply 3x square 3x square multiply by 4y multiply by 2x. Now if you will look carefully, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो कितना आएगा 24. After that, multiply the variables. फर्स्ट वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, सेकेंड वेरिएबल है एक्स लाइक टर्म में, ठीक है. y लाइक टर्म नहीं है, सो यहाँ पे ही इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 होगा. 2 + 1 x to the power 3. ओके, एंड y अकेला है, सो y को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि उसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है. सो x to the power 3y. So this is your final answer. Now the next one you can see we have to multiply this one. Now we are having 4 terms, 4 monomials. So again 2 5s are 10, 10 3s are 30 and 30 4s are 120. Now again like terms को एक साथ लिखिए, a to the power 2 a and ये कितना हो जाएगा a की पावर 3, b की पावर 1 and b की पावर 3, so b की पावर 4, so a to the power 3 and b to the power 4. This is how you have to solve it. Clear? Now let's see multiply the following monomials. So you can see 2 4s कितना हो जाएगा बच्चों 8, राइट. x to the power 2 x to the power 2 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा x की पावर 4, y की पावर 1 y की पावर 2, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3. क्लियर? इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है, सो -4/3 इंटू 3/2 को सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, ये कट के आपको मिलेगा -2. ठीक है, a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से कीजिए, a की पावर 3 एंड b की मल्टीप्लाई. अब देखिए दोनों b और c दोनों अनलाइक टर्म है, सो एज इट इज लिख दीजिए. क्लियर? आगे बढ़े. नेक्स्ट ऐसे ही आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिजल्ट. सो यू कैन सी दैट हियर, लेट मी सॉल्व दिस वन फॉर यू सो दैट यू कैन डू द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. सो 1/5 x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय -8 to the power 9 x की पावर 4 y की पावर 1 कुछ भी नहीं है, z की पावर 4. आपको क्या बोला, फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x y z. नाउ 1 की मल्टीप्लाई -8 से कीजिए, -8 9 5 45, x की पावर 3 x की पावर 4, x की पावर कितनी हो जाएगी 7, ऐड हो जाएगा y की पावर 3. ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए बच्चों y की पावर 3 y की पावर 1, माय बैड, कितना हो जाएगा y की पावर 4, 3 + 1 4 हो जाएगा ना, एंड z की पावर 0 एंड z की पावर 4, z की पावर 4. नाउ अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसकी, x y और z की. -8/45 इंटू x की पावर 7 है यानी 1 की पावर 7 इंटू y की पावर 4 यानी 2 की पावर 4
z की पावर 4 यानी -1 की पावर 4 हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब आसानी से सॉल्व हो सकता है, राइट। -8/45 ये कितना हो गया 1, ये हो जाएगा 16 एंड दिस इज 1, क्योंकि -1 के 4 बार मल्टीप्लाई होगी, विल गेट 1। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट। आपको पता है जब आप 16 की 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलता है 128/45। This is your final answer. Okay, so in the same manner you have to solve this question for the given values. You can see that here. जब आपको प्रोडक्ट निकालना आ गया है, प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको जस्ट ये वैल्यूज पुट करनी है एंड वेरीफाई करना है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। सो व्हेन मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल वी यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ यू कैन सी दिस मीन्स दैट द monomial multiplies each term of the polynomial individually and then the results are combined. For example, a monomial is an algebraic expression with only one term like 3x minus 5a square b etc. A binomial is a polynomial with two terms x plus 2 and 3y minus 4. A trinomial is also a polynomial but with three terms 2a square plus 3a plus 4. You can see. Now, a polynomial can have any number of terms and each term consists of a variable raised to a non-negative integer power multiplied by a constant. You can see that here, steps for multiplying a monomial by a polynomial क्या होगा? सबसे पहले multiply the monomial by each term of the polynomial separately. ध्यान से देखिए, मोनोमियल को आपको each term से multiply करना है polynomial के separately and apply the distributive property to combine the results. Now, simplify the expression by performing any necessary arithmetic on the coefficients and adding exponents of like variables. वही same process जो हमने पहले किया था. Multiplication of a monomial and a binomial. You can see, let's multiply a monomial by a binomial. So you can see that here multiply 4x 2x plus 6. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम 4x की x plus 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so जब 4x की x से मल्टीप्लाई करेंगे we will get 4x square एंड 4x की देन 6 से करेंगे तो हमें मिलेगा 24x. नाउ प्लस का साइन एज इट इज बीच में रहेगा. दिस इज अ फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट देखिए, वी आर ओनली यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल. सो जब हम देखिए ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, सो 2y की पहले मल्टीप्लाई होगी y स्क्वायर से, ठीक है. ये देखिए फिर यहाँ पे आप ध्यान से समझिए बच्चे, माइनस का साइन है, 2y की मल्टीप्लाई होगी -3y से, सो -6y स्क्वायर मिलेगा, और 2y की मल्टीप्लाई होगी 4 से, सो यू विल गेट 8y. नाउ यू हैव टू कंबाइन द रिजल्ट्स. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यू कैन सी दैट हियर फाइंड द प्रोडक्ट. पहले a स्क्वायर की मल्टीप्लाई कीजिए a स्क्वायर b से, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई कीजिए a स्क्वायर b से, यू विल गेट a टू द पावर 4b. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई कीजिए बी स्क्वायर ए से, तो कितना मिलेगा बताइए. ए की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एंड बी की पावर 2. अब इनको ऐड कर दीजिए, देखिए यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा. मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रही हूँ, ए टू द पावर 4 बी प्लस ए टू द पावर 3 बी की पावर 2. क्लियर? ऐसे आपको इन्हें सॉल्व करना है, हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आप कर लेंगे आसानी से. 3 की मल्टीप्लाई पहले -2 से करेंगे, जो आपको मिलेगा -6x. फिर 3x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे, तो ध्यान से देखिए, जब हम 3x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे तो 3 एज इट इज रहेगा और x की पावर 2 हो जाएगी, और y देन 3x की मल्टीप्लाई y से कीजिए 3xyz. क्लियर? ऐसे ही बच्चों बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं. सिंप्लीफाई करिए इसे एंड फाइंड द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 4x 3x minus 7 plus 5. सो 4x की मल्टीप्लाई पहले 3x से कीजिए 12x स्क्वायर, 4x की मल्टीप्लाई इससे कीजिए -28x प्लस 5. नाउ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 3 की पावर 2 -28 into 3 प्लस 5. नाउ यू कैन सॉल्व इट, राइट. 12 into 9 कितना हो जाएगा 108, माइनस से कितना हो जाएगा 3 8 24, 384 प्लस 5. नाउ ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 84. सो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 29. बेसिकली और आंसर. क्लियर? तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. आई होप आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट देखिए,
multiplying a polynomial by a polynomial, so multiplying a binomial by a binomial. When multiplying two binomials, we apply this distributive property or use the FOIL method. FOIL method means first, outer, inner, last. Okay, then which helps in organizing the steps for multiplication. The goal is to ensure that each term from the first binomial multiplies with each term from the second binomial, and then the results are simplified by combining like terms. So we will understand with an example because ये concept बहुत important है. करते क्या है बच्चों, आपको दो बाइनोमियल्स ये हैं, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है. सो हम करते क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं. बट कैसे करते हैं देखिए, वी प्रोसीड स्टेप बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ईच टर्म इन द फर्स्ट बाइनोमियल टू एवरी टर्म इन द सेकंड बाइनोमियल. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वी क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म 4x की मल्टीप्लाई सेकंड वाले बाइनोमियल से करेंगे, फिर पहले वाले बाइनोमियल का सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई अगेन दूसरे बाइनोमियल से करेंगे. अब देखिए किस फॉर्मेट में आ गया ये, मोनोमियल की मल्टीप्लाई. अब देखिए किस फॉर्मेट में आया है, मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, जो कि आपको आता है, अगेन मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, एंड उसके बाद आप क्या करें, लाइक टर्म की लाइक टर्म से सॉल्व करिए और ऐसे ही आपको फाइनल आंसर देना है. ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों कैसे करना है. सबसे पहले हम स्टेप 1 में देखेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 4x की 3x प्लस 6y से. सो जब आप 4x की पहले 3x से करोगे यू विल गेट 12x स्क्वायर, फिर 4x की 6y से करोगे यू विल गेट 24xy. ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 क्या कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 5y की 3x प्लस 6y से. सो 5y की पहले 3x से कीजिए यू विल गेट 15xy, 5y की आप 6y से कीजिए यू विल गेट 30y स्क्वायर. सो आपको चार टर्म्स मिले, 1 2 3 4. नाउ कंबाइन देम. सो कंबाइन द रिजल्ट 12x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 15xy प्लस 30y स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म है. जब आप इन्हें सॉल्व करोगे यू विल गेट 39xy. दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप क्लियर हुआ. चलिए, सो नेक्स्ट देखिए, दस द प्रोडक्ट, फाइनली वी कैन राइट लाइक दिस, दस द प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल इज दिस. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल 2, मल्टीप्लाई x प्लस 5 x माइनस 3. अगेन वी विल फॉलो द सेम थिंग. x की मल्टीप्लाई हम पहले x माइनस 3 से करेंगे. सो कैसे करना है देखिए, पहले x की, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे कैसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई पहले x माइनस 3 से करेंगे, देन प्लस 5 की मल्टीप्लाई अगेन x माइनस 3 से करेंगे. नाउ x की मल्टीप्लाई x से होगी, x की मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगी, 5 की मल्टीप्लाई x से होगी, 5 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगी. x स्क्वायर माइनस 3x 5x माइनस 15. सॉल्व किया. नाउ ये दोनों लाइक टर्म है, कितना देगा 2x. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. क्लियर. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट देखिए क्या है, मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल. अब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनोमियल की trinomials. So बच्चे देखिए, when multiplying a binomial by a trinomial, we expect to get 3 into 2 6 term at first. However, in this example, the final result has only 4 terms. This happens because of the terms are like terms and can be combined and reducing the total number of terms. So basically, अगर आपके expressions में किसी में 3 terms है और किसी में 2, obviously we'll get 6 terms. But ऐसा भी केस हो सकता है कि आपकी कुछ terms like terms हो, so वो combine हो जाए. For example, आपको एक binomial दिया है 2a plus 7 and एक trinomial दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो द सेम प्रोसीजर यू विल फॉलो हियर. पहले a की मल्टीप्लाई आप a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 से करेंगे, फिर 7 की मल्टीप्लाई आप उसी सेम नंबर से, सेम टर्म एक्सप्रेशन से करेंगे. सो स्टेप 1, मल्टीप्लाई ईच टर्म इन द बाइनोमियल विद ईच टर्म इन द ट्राइनोमियल. सो कैसे करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. पहले आप इसे लिखेंगे कैसे, देखिए a की मल्टीप्लाई आप पहले करेंगे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 से, देन 7 की मल्टीप्लाई आप करेंगे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 से. अब ध्यान से देखिए बच्चों, a की मल्टीप्लाई पहले हमने किससे की, a स्क्वायर से. a की मल्टीप्लाई पहले हमने किससे की, a स्क्वायर से, देन a की मल्टीप्लाई 3a से करी, फिर a की मल्टीप्लाई 5 से करी. वहीं पर दूसरे प्रोसीजर में हमने 7 की मल्टीप्लाई a से करी, a स्क्वायर से, माय बैड, फिर 7 की मल्टीप्लाई 3a से करी, फिर 7 की मल्टीप्लाई 5 से करी. ओके, दिस इज हाउ वी हैव ब्रेक डाउन all the terms. Now मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर जो मिला, आपने क्या किया, उसे कंबाइन करा. कंबाइन करने के बाद नाउ यू कैन सी दैट हियर इफ यू विल केयरफुली कि
3a² 7a² क्या है, लाइक टर्म्स। क्या है बच्चों, लाइक टर्म्स। वहीं पर 5a एंड 21a क्या है, लाइक टर्म्स। सो जैसे ही आप इन्हें सॉल्व करोगे ये मिलेगा आपको 10a² और यहीं पर ये आपको देगा 26a, राइट। सो 10a², 26a, a³ एज इट इज रहा एंड 35 एज इट इज। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है इसमें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2x + 3y 5x + 3y। सो सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले आप 2x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5x + 3y से। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 2x की जब 5x से आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 10x² प्लस 2x की 3y से करोगे तो आपको मिलेगा 6xy। वहीं पर बच्चों जैसे ही आप 3y की दूसरे टर्म की आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे 5x + 3y से, सो 3y + 5x कितना मिलेगा, 15xy एंड 3y की 3y से करोगे तो 9y²। नाउ कैन यू टेल मी आफ्टर कंबाइनिंग द रिजल्ट, मैं यहां लिख देती हूँ कंबाइन करके, 10x² + 6xy + 15xy + 9y²। इफ यू विल सी केयरफुली बच्चों ये दोनों लाइक टर्म है। कितना देगा, ये लाइक टर्म है तो अगर इसे हम जोड़ देंगे सो ये है 10x², 6 + 15 it will be 21xy + 9y²। Clear? This is your final answer and this is how you will solve it. Now the same thing will happen here. कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए, पहले इसको यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व करती हूँ। पहले x² की मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप, इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर y² की मल्टीप्लाई करेंगे आप, देन z² की मल्टीप्लाई करेंगे आप एंड एट लास्ट कंबाइन कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, सेम ही मेथड है। पहले आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पूरे से, फिर आपको इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसको ओपन कर देना है। चलिए एक करके देखते हैं सॉल्व, ठीक है। सो पहले x² y की x से कीजिए, कितना आएगा बताइए। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, सो x की पावर 3, ओके दिस वन इज x की पावर 3 एंड y प्लस, जब इसके आप y से करोगे x² y की y से करोगे तो x² y², देन xy² की x से कीजिए x² y², देन अगेन इसकी y से कीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, xy³। क्लियर? क्योंकि y की पावर 2 है, y की पावर 1 तो y की पावर 3, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -3x - 3y। आपको पता है ब्रैकेट ओपन होते ही साइन चेंज हो जाएंगे। अब लाइक टर्म आइडेंटिफाई कीजिए बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म है ना, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। अब आप यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। यही क्वेश्चंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आप आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग लगा हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बच्चों।